রাজ্য অতিথিশালায় ত্রিপুরামথা দলের সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় দলের নেতৃত্বরা। বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সহ নর্থ ইস্টের বিজেপি দলের কোঅর্ডিনেটর সৌমিত পাত্র। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর, রাজ্য অতিথিশালায় ত্রিপুরামথা দলের সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এবং সেই বৈঠকে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সহ নর্থ ইস্টের বিজেপি দলের কোঅর্ডিনেটর সৌমিত পাত্র। এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সামিল হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় দলের নেতৃত্ব। At least for us to discuss many things, I believe, with Amit Shah and President and even newly elected Chief Minister Manik Shah. What are we expecting? Are we expecting some interesting developments happening in Tripura right now? And Manik Shah declared I said to everyone that I will go to the palace and from there I will speak to the media properly from the palace. If you all want to listen to me what I have to say, then kindly come to the palace and we will have a proper briefing where I will tell you and I'll give you my statement. What time? I think if you all can decide what time, then it will be better because I am available. Then you please come in 1 hour's time. It's 4:40. And my only humble suggestion to all of you all, because you all are national media, is kindly do not get very excited. We are here to serve the community and we are here to represent the Tiprasa community and the people of Tripura, and we will, whatever we have to say will be for the upliftment of the community, and we are here not to ask for anything for ourselves but for a constitution solution. आज त्रिपुरा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज त्रिपुरा में शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, माननीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह जी के साथ वो माताबाड़ी गए। वहाँ उन्होंने माता त्रिपुरा सुंदरी जी का दर्शन किया और माँ का आशीर्वाद मांगा है कि जो त्रिपुरा के 40 लाख निवासी हैं उन सबका कल्याण हो, सरकार को शक्ति प्रदान हो और सरकार अच्छा काम और जल कल्याणी काम करने में सक्षम रहे। यही आशीर्वाद आज माँ से मांगा है। उसके पश्चात आईपीएफटी की जो वरिष्ठ नेता हमारी जयंती देबबर्मा जी हैं, वह सुपुत्री हैं, पूर्वतन नेता स्वर्गीय श्री एनसी देबबर्मा जी की बेटी हैं, चुनाव भी लड़ी थी। उनसे आदरणीय गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी की मुलाकात हुई, सीएम साहब की भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में, इस भेंट वार्ता में किस प्रकार से आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सदृढ़ रूप से काम कर सके, त्रिपुरा के उन्नयन के लिए, त्रिपुरा के उन्नति के लिए काम कर सके, इस विषय पर एक बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। साथ ही आज महिला दिवस भी है, तो एक खुशखबरी आप सबके लिए है कि 2 जनजातीय महिलाएं, आदरणीय जयंती देबबर्मा जी जो आईपीएफटी से लड़ी थी चुनाव, हमारे गठबंधन की पार्टनर है, और बीजेपी से हमारी दूसरी जनजाति बहन पाताल कन्या जमातिया जो चुनाव लड़ी थी आशाराम बाड़ी से, कुछ वोटों से रह गई। उन दोनों को एमओएस का रैंक दिया जाएगा निगम अपने किसी बोर्ड में, निगम बोर्ड में, और दोनों हमारी जनजातीय बहनों को शक्ति प्रदान करके किस प्रकार से वो और काम कर सके, आज महिला दिवस के दिन यह निर्णय भी पार्टी ने लिया है। दादा, इसके साथ साथ मोथा जो यहाँ की लोकल पार्टी है, मोथा के नेता श्री प्रद्युत जी के साथ भी मुलाकात हुई है। उनके भी कुछ शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आसाम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी और त्रिपुरा के सीएम श्री मानिक शाह जी के मौजूदगी में एक बैठक चली है, जिस बैठक में जनजातीय विषयों पर बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उस पर डिस्कशन किया गया।
कि क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, कैसे जनजातीय सम्मान जो है उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है त्रिपुरा के अंदर। इन सब विषयों को गंभीरता से सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया कि IPFT, बाकी सभी जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक दल हैं और मोथा, इनके साथ हमारी पार्टी एक चर्चा करेगी। CM साहब ने कहा है कि एक विस्तृत चर्चाओं की श्रृंखला, सीरीज ऑफ टॉक्स इनके साथ किया जाएगा और उसके पश्चात समाधान भी निकाला जाएगा। और ये समाधान एक ही मंत्र के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इसी मंत्र के साथ निकाला जाएगा। आज आप लोगों की तीसरा मोता के साथ बैठक हुई है, इसमें क्या डिप्टी CM को लेकर कोई भी चर्चा हुई है? क्योंकि प्रद्युत देबबर्मन और उनका जो डिमांड है उसको लेकर गृहमंत्री जी से बैठक हुई है, क्या ग्रेटर ट्रिपुरालैंड इश्यू? नहीं, कोई भी डिमांड त्रिपुरा मोथा ने नहीं रखा, ना किसी प्रकार के डिमांड के विषय में बात हुई। जिस विषय में आपने डिप्टी CM, मंत्री इत्यादि आपने कहा, ऐसा कोई भी डिमांड ना तो मोथा की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई डिस्कशन किया। मोथा क्या सरकार में शामिल होगा सर? नहीं, इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। केवल जनरल टॉक्स था कि ट्राइबल वेलफेयर कैसे किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन टॉक्स के बाद CM त्रिपुरा ने आश्वस्त किया है कि सभी दलों के साथ, IPFT के साथ, बाकी सामाजिक दलों के साथ और मोथा के साथ भी बैठ करके ये चर्चा किया जाएगा और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ त्रिपुरा आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।